सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सबको। हो गया आप लोगों का होमवर्क? नॉट ऑल ऑफ इट, थोड़ा बाकी है। मतलब yeah, some words like exactly this year I don't know what happened. It was not that sincere. I mean, it is not that sincere as last year's. I mean, last year we were used to of doing homework, but now I think true. I think you need to get into the thing, finally. Yeah, like, into the flow actually. Yeah, exactly. We have been enjoying the vacation since long, so we are not used to of reading again actually. Yeah, That was exactly. Exactly. That's true. So have you done that Mahu Bindu Drishtant ka grammar? That I've done. Yeah. You have done. That Okay. I've done. I'm halfway through Rohini Udaharan mein. Yeah. Okay. Trying to get that done. Yeah. Meenu ma'am has. Jai Jinendra, Meenu ma'am. Jai Jinendra. जय जिनेंद्र। I'm audible, Jai Jinendra? Yes. Jai Jinendra, ma'am. How are you all doing? All fine. How are you, ma'am? Doing good, thank you. Good. Yeah. So you visited Nani's place yesterday. Sorry. कैसी चल रही है डिप्लोमा की पढ़ाई? बहुत टफ लग रहा है अभी तो। बहुत टफ मैम, मतलब ऐसा लगता नहीं है हम लोग पूरा कर लेंगे, होमवर्क फिनिश भी नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, एवरीडे बाकी ही रहता है, मतलब अभी भी किसी का भी ऐसा पूरा हुआ ही नहीं होगा। चलिए, क्या डाउट्स है आपके आपस में सॉल्व कीजिए। मनीषा जी, आपको जो डाउट था आप औरों से पूछिए। हाँ, बस वही मेरा डाउट। मैम अभी आ जाएंगे कुछ देर में, तो we'll ask her also, but until then I think we'll get the class. I hope you've not started the recording. कौन है host आज? Recording is already on, I think. When I started my thing, it said recording is going on. Oh, okay. So होस्ट कौन है मैम आज? एक भी पार्टिसिपेंट होस्ट जैसे तो बता नहीं रहा है। And if I say claim host role, it is asking for a 6 to 10 digit number. तो शौरिन सर को बोलना पड़ेगा होस्ट बनाने के लिए ऐसे। तो कौन यहाँ पे पहले आया था, तब सौरन जी थे क्या यहाँ पर? No, he wasn't there. But I could get into the meeting. That's it. Nobody was there. Oh, okay. But maybe we can just message him. If somebody can message him, he can send it. I don't know. Just call him straight away. Message पता नहीं कब देखेंगे, कब reply करेंगे. Just give me a minute. I'll talk to him.
No. So, madam, any discount? Okay, I've not been able to get in touch with him. वो बस calling बता रहा है. I dropped Because him a ma'am- message though. I've dropped him a message. If he reverts back, well and good. मतलब the point is कि मैम को अगर white board use करना रहेगा तो कैसे use करेंगे? Yeah, because last time he was saying he is traveling and he has meetings and all that. So Yeah. probably, yeah. Okay, let's just do the pratna for once before we begin the class. Namo Arihantanam, Namo Devanam, Namo Ayariyanam, Namo Jayanam, Namo Loe Savasahunam, Eso Panchanamo सूर्य देवता की जय हो. Yes, request you all to be on mute. And Manisha ji has a doubt. जिसको आंसर पता है उस चीज का जवाब दे. Yes, Manisha ji, over to you. Yes, yes. It's on page number 31. ये ना द्वितीय विभक्ति के रूल्स बताए. सेकंड रूल एक मिनट उनको बुक खोलने दीजिए एक बार. एग्जैक्टली. ओके. आपकी जो पर्पल बुक है प्राकृत व्याकरण, उस बुक में पेज नंबर 31. 31. Yes. Can I go ahead? Yes, yes. या सेकंड रूल जो है द्वितीय विभक्ति का, उसमें ऐसा बताया गया है कि हमको एक प्रधान कर्म है और एक गौण कर्म है. तो नॉर्मली जो कर्तृवाच्य में प्रधान कर्म को द्वितीय में दिया गया है और गौण कर्म को फर्स्ट विभक्ति रखी गई है. सिर्फ एक वह क्रिया जो है उसमें आकर ये उल्टा हो जाता है. प्रधान कर्म को द्वितीय हो जाती है और गौण कर्म को प्रथमा हो जाती है. पर ऐसा क्यों है? सॉरी, मैंने शायद उल्टा बोल दिया है. मतलब एक वाइस वर्सा हो जाती है. तो वह क्रिया का क्या इफेक्ट है? मतलब वह क्रिया का इफेक्ट है कि सप्तमी, नॉर्मली जैसे वह पुत्र को गांव में ले जाता है, तो यहाँ पे सप्तमी आया है, जो गौण कर्म है वो सप्तमी में है. तो नॉर्मली सप्तमी में हम हर जगह ऐसा रूल यूज करेंगे क्या? ये किसी ने किया है? किसको समझ में आया? मनीषा जी, हाँ उन्होंने सीधा यहाँ बताया खाली वह क्रिया के लिए होता है. हाँ. तो वह बोले तो ले जाता है. तो नहीं, मैं इसमें पूछ रही थी, अगर हम नहीं, वह एक मिनट, आप पूरा सुन लीजिए. वह गांव में ले जाता है, तो वो किसको लेके जाता है? पुत्र को लेके जाता है, गांव को नहीं लेके जाता है. वही वो बोलते सो मिथम पहम पूछे. तो वो पद को पूछता है, मित्र को नहीं पूछता है. तो वह के क्रिया, वो मतलब ऐसा समझ में आता है. यहाँ पे देखिए, इस प्रकार अन्य वाक्य बना लेने चाहिए. यहाँ वह क्रिया को छोड़कर अन्य क्रियाओं के योग में गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति रखी गई है. यहाँ यह जानना चाहिए क्रिया के अर्थ को पूर्ण करने के लिए
जिस संज्ञा शब्द को अनिवार्यता क्रम कारक में रखा जाए, मतलब निश्चित पूर्ण कर्म कारक में रखा जाए, वो प्रधान कर्म होता। वो सेंटेंस को पूरा करने के लिए जैसा रहते हैं ना वैसा रखना पड़ता है करके वो बोल रहे हैं, ऐसा हो सकता है। वो मुझे समझ में आ गया। मुझे ये समझना है, अगर ये सेंटेंस ऐसा होता कि समझ लीजिए माता बालक को दिन में मारती है, अभी इधर क्या होता है, या फिर माता के द्वारा बालक दिन में मारा जाता है, ये दो सेंटेंस में अब गौण क्रिया और कर्म क्रिया क्या है, मतलब कैसे करोगे आप इसको? इसमें भी यही रूल अप्लाई होगा क्या? हेलो श्री बालाजी, आई थिंक, हेलो श्री बालाजी। She is not here. शी इज नॉट देयर। आई थिंक उसका डिस्कनेक्ट हो गया। मेरे ख्याल से खाली वह क्रिया है ना, हाँ। उसमें ये रूल अप्लाई होगा, क्योंकि उसके ऊपर देखो सो मित्तम पहम पुच्छई, सो गाविम दुग्धम दुहई, वो सभी में नहीं है। तो आप खाली मेरा सेंटेंस जो है उसको ट्रांसलेट करिए, एक बार उसको करिए। माता पुत्र को दिन में मारती है, दिन जय में मारती जिनेंद्र। है। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। सॉरी हमारा सबके वहां से अभी आई। चलो मीनू, एनीथिंग दैट आई नीड टू बी टोल्ड मीनू? नहीं मैम, मैम अभी इसका ट्रांसलेशन करा दो। Soren ji is not here. We don't know who's the host, so we might not be able to use the whiteboard. The recording is on though, but पता नहीं, we are not been able to contact Soren ji से बात होस्ट की कौन नहीं। है? होस्ट पता नहीं कौन है? मैम, कोई भी नहीं है होस्ट। तो फिर But meeting recording is on मैम। Soren is very busy. He's not well, I think. He said not he's well. traveling ma'am, I think he's whatever may be the case. Okay, chalo. So Meenu, you're in the middle of something, means complete it, I'll wait. नहीं मैम, एक्चुअली वो डाउट था। मनीषा जी आप मैम से पूछ लीजिए। हाँ मैम, जय जिनेंद्र। हेलो। बोलो। हाँ मैम, ये हमारी प्राकृत व्याकरण बुक में पेज नंबर 31, इसमें द्वितीय का जो रूल नंबर 2 है, उसमें हमको ऐसा बताया गया है कि जब भी गौण कर्म होते हैं उनको हम द्वितीय में ले लेते हैं, और प्रधान, सॉरी उल्टा, गौण कर्म को फर्स्ट में लेके और प्रधान को द्वितीय में लेते हैं, सिर्फ वह क्रिया वाले को उल्टा कर देते हैं। कैसे कैसे आप क्या बोल रहे हैं? अब ये रूल पढ़ेंगे मैम एक बार, जैसे देखो देखो देखो, मैंने पढ़ लिया। देखो, द्विकर्म क्रिया यानी दो कर्म है। जैसे मैं गाय के दूध को दुहती हूँ, बराबर। मैं गाय को दुहती हूँ, तो कर्ता कौन है? दुहने का काम कौन कर रहा है? मैं। सो आई एम द कर्ता। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? गाय। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम द गाय, दैट इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट, दूध। तो दो कर्म हुए कि नहीं? हाँ। तो अपन जब हिंदी में वाक्य बनाते, मैं गाय के दूध को, तो वहां पर गाय और दूध में षष्ठी होनी चाहिए ना। दूध किसका है? तो गाय का। तो हमने वहां षष्ठी नहीं लगाया, हमने उसको गौण कर दिया। क्या कर दिया? उसको गाय इज इंपॉर्टेंट, तो गाय इज द प्रधान कर्म, तो उसमें मैंने द्वितीय ले लिया। और दूध, तो दूध को, तो वो तो द्वितीय ही है, तो कोई भी प्रधान गौण हो सकता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि मुख्य कर्म में द्वितीय विभक्ति ले लो, और गौण कर्म में या तो अपादान हो सकता है, या अधिकरण हो सकता है, संप्रदान हो सकता है, संबंध हो सकता है, उनमें भी द्वितीय ले लो। मैम कर्तृवाच्य का, लेकिन कर्मवाच्य का कैसे होगा? कर्मवाच्य यहाँ पर कहाँ है सेंटेंस? 31 में है,
जैसे सेकंड नंबर देखिए, सो गाविम दुग्धम दुहई, इसमें हाँ, हम उसके द्वारा गाय को हम फर्स्ट विभक्ति ली है, दूध को सेकंड विभक्ति ली है। अभी वो वाक्य नहीं है ना यहाँ पर, यहाँ कर्मवाच्य कहाँ दिया हुआ है? ये है ना वो जब नीचे आएगा में। तब देख लेंगे, वो जब आएगा नहीं तब मैम, उसका रूल है। नीचे मैम दिया हुआ है, है मैम। दिया है पेज मैम। 31 में है, ब्रैकेट में लिखा है मैम कर्मवाच्य। कर्मवाच्य लिखा है। हाँ हाँ हाँ, है ना, है ना, है ना, हाँ हाँ, है ना, हाँ। है ना, 31 में, 30 में देख रही थी, सॉरी सॉरी सॉरी, 31 में तो है ना। तेण हम गावी दुधम दुई जई। हाँ हाँ, करेक्ट। अभी पूछिए, क्या पूछना है? हाँ, मुझे ये वह क्रिया वाला फंडा समझ में नहीं आया। नीचे नोट में जो लिखा है यहाँ पुत्र प्रधान, मतलब आप वो नोट पढ़ लीजिए। मैं बताती हूँ, देखो, इनके इनके मतलब जो ऊपर के जो वर्ब्स दिए हुए ना, ऊपर जो वर्ब्स दिया हुआ है, दूहना, पूछना, रूंधना, है ना, मथना, मुंह से चोरी करना, तो इनके कर्मवाच्य बनाते समय गौण कर्म है ना, वो प्रथमा हो जाएगा और प्रधान कर्म में द्वितीय रहेगी। गौण कर्म में प्रथमा हो जाएगा। देखो रूल क्या है कर्मवाच्य का, कर्ता इन तृतीया, कर्म इन प्रथमा, बराबर। तो जो यस मैम। गौण कर्म है ना, जो सेकेंडरी है ना, उसको तो प्रथमा में लेके जाओ, और जो 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 क्या बोले प्रधान कर्म है ना, उसको द्वितीय में रखो। तो अब यहाँ पे देखो, किंतु वह क्रिया के प्रधान कर्म को प्रथमा में रखा जाता है और गौण कर्म में द्वितीय रखी जाती है। व्हाट इज दिस वह? व्हाट इज वह? थर्ड सेंटेंस मैम, थर्ड सेंटेंस आप देखिए मैम। हाँ, वह क्या बोल मीन्स ले जाता है। ले जाता है वह। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष वह, यानी अन्य पुरुष की बात जब हो रही है, वह मैम का सब मतलब में है अन्य वही है। पुरुष। नहीं मैम, सब में वह वही क्रिया है। है। वह वह क्रिया ले, में वह क्रिया के प्रधान कर्म को, मैम आप नीचे देखेंगे ना, क्रिया के अर्थ को पूर्ण करने के लिए जिस संज्ञा शब्द को अनिवार्यता कर्म कारक में रखा जाए वह प्रधान कर्म होता है, और जिसे वक्ता अपनी इच्छा से कर्म कारक में रखता है वह चाहे तो उसे दूसरे कारक में भी रख सकता है, वह गौण कर्म होता है। यहाँ पुत्र प्रधान कर्म है हाँ, और हाँ। कर्म वाक्य में वह क्रिया के साथ प्रथमा विभक्ति में रखा। आई विल लुक एट दिस एंड टेल यू लेटर ऑन। आई विल लुक एट दिस एंड टेल यू लेटर ऑन। यस मैम। हाँ, आप उसको रखिए, डाउट को बरकरार रखिए, मैं आपको वो देख करके बाद में बताऊंगी। आई एम नॉट, मतलब मेरे पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे वापस एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं एकदम अच्छे से आपको बाद में बता दूं, या फिर आप लोगों में से भी कोई बताना चाहता है तो उनका स्वागत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम मुझे जितना समझ में आया कि जो भी क्रिया है उसके अर्थ को पूर्ण करने के लिए, जैसे वह, अब वह गांव को तो नहीं लेके जा सकता, पुत्र को ही लेके जा सकता है, हाँ, है ना, तो इसलिए उसने पुत्रों को यहाँ पे प्रथम विभक्ति में लेके आ गया। और जैसे मेरे को ऐसा लगा जो सो गावी दूध दुहई, वो दूध दोहता है, गाय से दूध दूध हाँ, है। हाँ, तो वो दूध दूध प्रधान है कि गौण है? हाँ, प्रधान है मैम अभी इसमें। हाँ, तो प्रधान का रूल क्या है? प्रधान को द्वितीय में ही रहने दो। द्वितीय में रखो, हाँ, और गौण को प्रथम में ले जाओ। गौण को प्रथमा में। और यहाँ पे क्या हो गया, पुत्त गौण है, नहीं सॉरी, पुत्त गौण है, गांव और ग्राम प्रधान। प्रधान है। हाँ, तो उसने उनको पुत्र ने गौण को पुत्रों में लाके रख दिया, क्योंकि पुत्र को ही लेके जा सकते हैं, गांव को नहीं लेके जा सकते ना मैम। देखो वो सब क्लियर है श्री बाला, ये हाँ। वह क्रिया क्या है? वह बोले तो लेके जाना, ले जाता है, वह का मीनिंग ले जाता है। वह का मतलब है वहन करना। हाँ, वहन करना। हाँ, हाँ, वहन करना। हाँ, मतलब क्रिया का अर्थ पूरा सेंटेंस में है, वो क्रिया का अर्थ पूरा होने के लिए तो वहन उन्होंने क्रियाओं को छोड़कर, हाँ, ऐसा समझ में आया मैम वो। तो वहन क्रिया में ही क्या करना है, वहां पर गौण कर्म को प्रथमा विभक्ति में रखना है। हाँ, और उन्होंने नीचे पहले ये भी बताया है, क्रिया के अर्थ को पूर्ण करने के लिए जिस संज्ञा शब्द को अनिवार्यता, मतलब
कंपलसरी कर्म कारक में रखा जाए वह प्रधान कर्म होता है, और जिसे वक्ता ठीक अपनी है, ये इच्छा मैं से, बात बराबर। हाँ मैम, अभी मैं इसके ऊपर जो भी बाद में हाईलाइट करना मैं बाद में कर दूंगी, हाँ ठीक है मैम, है ना। और हाईलाइट करना है, अभी तो मेन बात समझ में आ गई, और हाईलाइट बात है वो मैं आपको बाद में बता दूँ। ठीक है मैम, कि इसको मतलब डिटेल में मुझे देखकर ही बताना पड़ेगा, अभी ठीक है। मैंने तैयारी नहीं की है उसकी, तो मैं छोड़ रही हूँ उसको। और आपने पूरे कारक पढ़ लिए? नहीं मैम, इस तरीके से आप डाउट्स लेकर आइए, फिर हम पढ़ाएंगे। आप लोग एक दूसरे को पढ़ाइए और पढ़िए, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा है ये कारक का लेसन, और इसमें पीछे वाक्य दिए हुए हैं, प्रयोग वाक्य है, कुछ उदाहरण सॉल्व करके दिए हुए, कुछ आपको सॉल्व करने के लिए दिए, उनको पढ़ते रहिए, लगाते रहिए। एक एक विभक्ति का दिया हुआ, वो करेंगे तो आपको वो रूल्स में आप जाएंगे तो थरो होगा। हम नहीं कराएंगे पूरी चीज, आपको स्वयं करना है, ठीक है। ओके, चलिए, और कोई डाउट? मैम मेरे को है एक डाउट। और कोई डाउट डियर? हाँ, मुझे मनीषा जैन, मुझे एक डाउट है। पूछो पूछो। हाँ मैम, ये प्रयोग वाक्य में ये जो हमको सॉल्व करने दिए हैं 22 सेंटेंस, उसमें 16 नंबर सेंटेंस में नदी और नगर के बीच में वन है। हाँ, सेंटेंस नंबर 16, पेज नंबर 35। हाँ बोलो। 16 नंबर सेंटेंस में नदी और नगर के बीच में वन है। हाँ हाँ, ये इसको मैंने किया है सरियम नयरम या अंतरा वणम अथि। ये रूल नंबर 8 लगाया है मैंने। हाँ पर मैम मैं ये पूछ रही थी, इसमें ऐसा भी लिख सकती हूँ कि मैं सरिया नयरम या मध्य वर्णम अथि, मध्य लिख सकती हूँ इसमें? हाँ, लिख सकते हैं। ये नॉर्मल हमारे उसके जैसे हमने पढ़ा था उसके हिसाब से। तो मध्य का मतलब क्या होता है? मध्य में। हाँ, हाँ, तो लिख बीच सकते हैं। में। तो हाँ, लिख यहाँ सकते कोई रूल अप्लाई नहीं किया हमने, नॉर्मल हैं। इसको सॉल्व बस किया है। ये ज्यादातर है ना, बहुत सारा कॉमन सेंस से आपको ट्रांसलेशन करना है। ओके। आपके सारे जो रूल्स पड़े हुए हैं वो सब कोई रख के, आप ये रूल्स के चक्कर में मत पड़िए, आप पहले वो अनुवाद कर लीजिए। और कहीं आपको रूल दिख रहा है, जैसे अभी अपने द्वितीया का देखा, बहुत कुछ तो हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, लेकिन ये गाविम दुद्धम तेन गावी दुद्धम, किसको प्रथमा किसको द्वितीया, ऐसे कुछ अपवाद में रूल्स चलते हैं, तो वो हमको ध्यान में कर लेना, बस। और कुछ नहीं ज्यादा बात। अब आपको तो कोई भी वाक्य दे तो अनुवाद करना आना चाहिए, उसके लिए डिक्शनरी पास में रहनी चाहिए। नदी को क्या बोलते हैं, नगर को क्या बोलते हैं, या तो पढ़ा हुआ उसमें से अपने मेमोरी से निकालो या डिक्शनरी से निकालो, और ग्रामर आपके पास है ही है। और मैम ये मुझे बीच लंका का नहीं मिला, लंका को क्या बोलते हैं? किसको? लंका। लंका का लंका ही है। लंका ही है, ओके। क्यों बोले तो? Krishna. हाँ, Sorry, no, I didn't mean to interrupt. Go ahead, finish, ma'am. लंका से कौन सा पुरुष है मैम इसमें? लंका इज प्रथमा। सॉरी, name of a place. सॉरी, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? हाँ, एंडिंग है, तो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। ओके, ठीक है और मैम। लंका का लंका क्यों है बोले तो, वो का है ना, का के पहले अंग की मात्रा है, तो वो एक ही ग्रुप का है, वो एक ही ग्रुप का है। जैसे कृष्ण में क्रू और श्न, तो वो प्राकृत में हो जाएगा किन्ह, कण्ह। ऋषभ विल बिकम ऋषभ, ऋषह, उसभ, उसह। तो ऐसे 1100 सूत्र के रूल हेमचंद्र आचार्य के अलग से पढ़ने पड़ेंगे, हम उसमें से आपको 40-50 रूल पढ़ाएंगे, फिर आप पूरे 1100 पढ़ो, तब कहीं जाकर के आपको पूरा प्राकृत ग्रामर हाथ में आएगा। अंडरस्टूड डियर? ओके मैम, अंडरस्टूड? यस Ma'am, मैम। can I ask a quick question, please? Quick, Suchita quick, here, Jai Jinendra ma'am. Yeah, the first sentence, whilst it appears very straightforward, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। मैम यहाँ मैंने तेन ग्रंथों
पढ़िजयी किया, तो हाँ शुड इट बी तेन गंथम, ये क्योंकि ये द्वितीया में आ रहा एक्सरसाइज है, तो मैं जस्ट, हाँ, बिकॉज मुझे तो First one is द्वितीया correct. दिखा नहीं इसमें। हाँ, नो, तेन गंथो पढ़िजयी, तो रूल क्या है कि वो तृतीया एंड कर्मवाच्य फर्स्ट। में कर्ता प्रथमा में चला गया, बस वही रूल है यहाँ पर। हाँ, तो क्योंकि ये द्वितीया की एक्सरसाइज में आया है, दैट्स व्हाई आई वाज वंडरिंग कि बिकॉज बाकी No, का no, इज no, ऑल पर द रूल्स। नहीं So, सुचेता जी, ये प्रथमा और द्वितीय दोनों को मिला के दोनों क्या है? ओके, दैट्स व्हाट आई थॉट। ठीक है, तो थैंक यू। पेज नंबर 31 में आपका कर्मवाच्य का वाक्य ना, उसमें प्रथमा में गया कि नहीं गया? ठीक है मैम, जो देन गंधम आई एम फाइन। द्वितीया में था वो प्रथमा में गया कि नहीं गया? गया मैम, गया। थैंक यू। हाँ ओके ओके, बस जस्ट इट वाज अ क्विक वन, सॉरी, थैंक यू। हाँ, और कुछ डियर? एक्चुअली क्या, लास्ट वीक फुल हम लोग बहुत बिजी थे, इस वीक भी फुल बिजी है। ऑल एडमिशंस क्लासेस, 5 आवर्स क्लासेस चल रही है हमारी, और फिर उसके बाद पर्यूषण में बिजी हो जाएंगे। इसलिए दिस मंथ इज बस ऐसे फुर निकलने वाला है ये मंथ। इसलिए ना, तो हम लोग अपनी बुक्स के साथ बैठ नहीं पाते, आपके सिलेबस के साथ बैठ नहीं पाते हैं, इसलिए व्यवधान हो रहा है। ठीक है, डोंट माइंड, ओके। चलिए, अभी हम चलेंगे गद्य पद्य, अरहत प्रवचन। इजी वाला मैं पहले करा रही हूँ, क्लिष्ट वाला बाद में आएगा। ठीक है, अरहत प्रवचन एकदम इजी है, आप लोग भी कर सकते हैं। निकालिए, और बहुत सुंदर सुंदर गाथा है। बज्जा लगम गौड़ वहो आचारांग सब मैं कराऊंगी, लेकिन ये आप लोग करने की कोशिश करिए। एक एक गाथा, भगवती आराधना सब मैं कराऊंगी, आप लोग भी कराइए, कोशिश करिए। अरहत प्रवचन पाठ नंबर 7, ये एक संकलन है। कैसे समण सुत्तम एक संकलन है, कंपाइलेशन ऑफ गाथास फ्रॉम डिफरेंट टेक्स्ट। वैसे समण सुत्तम आप लोगों ने पढ़ी थी ना, कितनी सुंदर सुंदर गाथाएं लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी, याद है क्या? वैसे ही अरहत प्रवचन भी संकलन। चलो, मैं गाती हूँ, आप लोग मीनिंग निकालो। मेहा होज्जन होज्जव लोए जीवाण कम्मवस गाणम उज्जाओ पुणतः विहु नाणम्मि सयानमो तव्वो। वो जबरदस्त गाथा है। मेहा, मेहा का मतलब है मेधा, मेधा यानी बुद्धि। किसी को चढ़ रहा है या नहीं चढ़ रहा है? होज्जन होज्जव, हो या अथवा नहीं हो। लोए लोक में, जीवाण यानी जीवों के, कम्म वसगाणम कर्म के वश वाले जीवों के, क्षयोक्षम ज्ञान हो अथवा नहीं हो। उज्जाओ यानी उद्यम, एफर्ट, हार्ड वर्क। पुण्य, पुण्य का मतलब है तब भी, सॉरी, पुण्य का मतलब है फिर भी। तह भी हो, तब भी। पुण्य का कोई मीनिंग नहीं है वहां पर। तब भी, हु यानी डेफिनेटली। नाणम्मी ज्ञान में, सदा। उज्जाओ उद्यम, न मोत्तवो नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जैसे कुएं के ऊपर रस्सी है, वो रस्सी चलती रहती है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो उस पत्थर पर भी निशान होते कि नहीं होते? जब जड़ पर निशान हो सकता है, तो मेहनत करने पर, चैतन्य स्वरूप पर निशान कैसे नहीं पड़ेगा? इसलिए ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में उद्यम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। होज्ज न होज्ज, आगे इससे पता चलता है ये कोई श्वेतांबर टेक्स्ट है। कौन सी टेक्स्ट है मुझे भी नहीं मालूम, मैंने भी इतना डीप में अभी नहीं पढ़ा ये वाला रेफरेंस निकालने का काम। अंडरस्टूड? तो जाइए, जो जयपुर वाले अपब्रह्म साहित्य एकेडमी, जाइए वहां से रेफरेंस शकुंतला आंटी के पास बैठ के निकाल लीजिए, जाइए वहां पर।
अंडरस्टूड डियर? आगे चलूं? अगर मैं ऐसे पूछ पूछ के करूंगी ना तो इसी में मेरा डियर हो जाएगा, 10 गाथा करवानी। मीनू, इसका गाथा का मीनिंग अगर मालूम, रेफरेंस मालूम है तो देखना। दशवेकाली क्या उत्तराधीन होगा? निस्संते सिया मुहरी बुद्धाण मंतिये सया अट्ठ जुत्ताणी सिक्खिजा निरट्ठाणी वज्जये। आई थिंक दशवेकाली की ये गाथा है। निस्संते, निस्संते का मतलब है निशांत, शांत रहें। सिया अमुहरी, सिया का मतलब है मुहरी, मुखरी यानी बोलना। सिया यानी सदा सोचकर वचन बोले। बुद्धाणम यानी इंटेलिजेंट, वाइज, अवेकंड। अंतिये यानी उनके पास में, बुद्धाणम यानी वाइज लोगों के पास में, अंतिये अंतपुर में, अंतवास में सदा रहे। ओके। उत्तराधीन की फर्स्ट अध्ययन का गाथा है मैम, हाँ? विनय श्रुत। उत्तराधीन का पहला अध्ययन विनय श्रुत की गाथा है मैम। हाँ, विनय श्रुत की गाथा है। वेरी गुड। मुझे ना हमेशा दशवेकालिक उत्तराधीन में डाउट होता है क्योंकि दोनों मैंने एक साथ कंठस्थ किए थे, 10-10 अध्ययन, तो इसका उधर उसका इधर, ऐसे दिमाग में कंफ्यूजन चलता है, ऐसे मैं बोलती नहीं है ना, इसलिए दोनों बोल देते हो। आप लोग ढूंढ लो कौन सा है। ठीक है, तो मीनू उत्तराधीन पढ़ाती है ना यूनिवर्सिटी में, तो उसको ज्यादा मालूम है। चलो, तो अट्ठ जुत्ताणी, अर्थ युक्त शब्दों को, अर्थों को, पदों को सिक्खी जा। अब इससे पता चलता है ये अर्धमागधी टेक्स्ट, डबल जा आ गया ना, सीखें। निरट्ठाणी वज्जय, निरर्थक का त्याग कर दे। अंडरस्टूड? इजी। अब इसका डिटेलिंग आप लोग पकड़ते रहे। थेवम थेवम धम्मम करे ह, थोवम थोवम, थेवम थेवम, जई ता बहुम न सके ह। जई यानी यदि, तुम जई यदि, ता का मतलब है, आप लोग पीछे देख लेना मीनिंग, ता का विशेष कोई मीनिंग है तो। यदि बहुम न सके, बहुत ज्यादा तुम्हारे द्वारा पॉसिबल नहीं है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो। पिच्छ महानइयो, महानदियों को देखो। बिंदु हिम समुद्र भूयाओ, बूंद बूंद से वो समुद्र बन गया। ये सब समाधि में ले सकते हो गाथाएं। मीनू, समाधि क्या है पहले ज्ञान से समझो, श्रद्धा से समझो, फिर चरित्र में लेकर आओ। समझ में आ रहा है? आपका भी पीएचडी का काम इन गाथाओं के माध्यम से अच्छा हो सकता है। जीवेसु मित्त चिंता, मित्ति करुणाय होई अणुकंपा, मुदिदा जदि गुण चिंता, सुह दुख धिया मणम उवेखा। 4 भावना है ना, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ। आप लोग अभी इसका अनुवाद कराओ। आप लोग बताओ इसका अनुवाद, कोई भी एक जन आगे आओ, पढ़ो। पहले राइट में पढ़ लो, लेफ्ट में पढ़ लो, पीछे नहीं पढ़ना, पीछे घर जाके पढ़ना। पीछे Okay. है ही नहीं मैम, पीछे नहीं है, मुझे नहीं मालूम है कि नहीं, मैं नहीं देखती वो सब। 1 to 6 चैप्टर्स तक का है, 7th हाँ। ऑनवर्ड्स नहीं है। हाँ, तो आप लोग करो इसका ग्रामर, कराओ इसका ग्रामर। जीवेसु मित्त चिंता, जीवेसु जीवों में, मित्त चिंता यानी मैत्री भावना, चिंता यानी भाव, चिंता यानी मन के भाव। चिंता का मतलब वो स्ट्रेस वाली चिंता नहीं लेना, चिंतन वाला चिंता लेना। ओके, एक शब्द के बहुत से मीनिंग हो सकते। चलो कराओ, 4 भावना कराओ आप लोग, मैं नहीं कराऊंगी। मीनू आप देखो, आप लोगों से करवाओ, मैं बैठी हूँ यहाँ पे। यस मैम। जीवों में मित्र चिंता यानी मित्रता, मैत्री, करुणा, विचार, चिंता मतलब विचार, राइट में विचार मित्रता दिया का है। विचार। हाँ, जीवों में मित्रता का विचार, मैत्री, करुणा, यह होई अनुकंपा। मैत्री यानी मैत्री, मैत्री, करुणा, यह होई
अनुकंपा। करुणा का मतलब है करुणा। करुणा वाले दुखी जीवों के ऊपर। दुखियों में दया करना करुणा है। अनुकंपा यानी दया, करुणा यानी दुखी जीव लेना यहाँ पर, क्योंकि नहीं तो करुणा और अनुकंपा का एक ही मीनिंग है ना। करुणा, दया, अनुकंपा एक ही मीनिंग लगता है। तो यहाँ पर करुणा का मतलब है दुखियों पर होती है अनुकंपा। अनुकंपा, कंपा यानी कंपन, वाइब्रेशन। अनुकंपा यानी उस वाइब्रेशन के पीछे पीछे जो भाव चल, कैसे भगवान महावीर को चंड कौशिक के ऊपर अनुकंपा थी, वो उसको भी अपनी आत्मा जैसा ही देख रहे थे, है ना। तो आत्मवत सर्वभूतेषु, जैसी मेरी आत्मा है वैसी सभी जीवों की आत्मा। तो अपनी आत्मा के साथ मैं बाद में मीनिंग बताऊंगी इसका, चलो आप करो आगे। मुदीदा, मुदीदा यानी मुदिता। प्रमोद भाव। मुदीदा यानी देखो प्रमोद मुनि साहब अपने नाम के आगे बहुत बार मुदीदा लिखा है ना। प्रमोद का मतलब मुदीता। तो मुदीता प्रमोद, प्रमोद का मतलब क्या है? डिलाइट, हैप्पीनेस। किसके प्रति? जदि गुण चिंता। जदि यानी यति, यति यानी साधु सज्जन के गुणों को देखकर मन में मुदिता का भाव, उनके गुणों का चिंतन करके मुदिता करना। और सुख दुख, सुख और दुख में, सुख दुख धिया मनो। दिया का मतलब है समान, दिया का मतलब है समान। सुख दुख में समान भाव, उसका नाम है उपेक्षा, मध्यस्थता। सुख दुख धिया मनो। आप सब में से किसको मेरी भावना आती है? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, ये मुदिता भावना। दुखियों को देख पर पे करुणा भावना। देखो मेरी भावना में 4 लाइन दी हुई है, चारों भावना की। सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। मैत्री भाव सब जीवों पर नित्य रहे, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। उपेक्षा, उपेक्षा यानी मध्यस्थता। आज कोई मुझे बोले मरना है, आई एम रेडी। लाखों वर्षों जीना है, ओके नो प्रॉब्लम। क्यों क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है समाधि। लेकिन हमको तो लाखों वर्षों जीने के लिए तो हैप्पी, और आज मरना हो तो वेरी सैड। कहाँ है समाधि, कहाँ है जैन धर्म? न जीना आता है न मरना आता है। मैं तो कहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, जिसको मरने की कला मालूम है उसको जीने की कला मालूम। और आप लोग सब प्रतिक्रमण करते हो ना, तो उसमें 12 भावना वो जीने की कला, और तब संलेखना वो मरने की कला। क्या प्रतिक्रमण में रोज बोलते हो? न जीने की इच्छा न मरने की इच्छा, यह लोगा सम सप्पोगे, परलोगा सम सप्पोगे। सम सप्पोगे का मतलब क्या है? फाइंड करना, मैं नहीं बताने वाली, सब चीज मैं नहीं बताऊंगी, फाइंड करके आना। सम सप्पोगे का मतलब ये लोगा सम सप्पोगे, बोलते हैं ना प्रतिक्रमण में रोज। इच्छा ना होना मैम, परलोक की इतनी इच्छा ना होना। आई वॉन्ट द वर्ड मीनिंग, सम सप्पोगे। एक्चुअली परलोक संस्थाओगे का वो पढ़ा था कि परलोक की भी इच्छा नहीं होना। मैंने वर्ड का मीनिंग पूछा, सम सप्पोगे शब्द का अर्थ पूछा, फाइंड करके आना। ओके मैम। क्या बोलते हो प्रतिक्रमण में रोज? ऐसे ही बोल देते हो जाता है प्रतिक्रमण, नाटक वाला प्रतिक्रमण हो, रियल प्रतिक्रमण नहीं हो।
रोज पाप करो, रोज प्रतिक्रम, रोज मिच्छामि दुक्कडम बोलो, वापस अगले साल मिच्छामि दुक्कडम के लिए तैयार हो। रोज उपवास करो, रोज भक्ति करो, रोज पूजा करो, बस यही करते करते मर जाओ। सम्यक करना नहीं सीखेंगे, और जब तक सम्यक नहीं सीखेंगे मोक्ष मार्ग प्राप्त, रियल समाधि, आरोग्य, बोधि लाभ नहीं हो, सिद्धि नहीं हो। संत पाओगे तो सुख पाने की इच्छा ही तो हुआ। मुझे वर्ड का मीनिंग चाहिए, सम सप्प का वर्ड विच्छेद, फाइंड आउट फ्रॉम टीचर्स। ओके, अंडरस्टूड। धी का मतलब होता है बुद्धि, सुख दुख में समान बुद्धि, उसका नाम है माध्यस्थता। सत्य। और एक लाइन बता देती हूँ, संस्कृत में लिख लेना, गूगल में जाके ढूंढ लेना, नहीं तो आपकी भजनावली की बुक होगी उसमें ढूंढ लेना। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु दैव। कि हे देव, मेरे मन में सभी जीवों के प्रति सत्वेषु मैत्रीम, ये आ गया, जीवेषु मित्ति, गुणीषु प्रमोदम, ये है मुदिदा जदि गुण चिंता, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, जो जीव कष्ट पा रहे हैं उनके प्रति कृपा का भाव, और माध्यस्थ भाव टुवर्ड्स दी ऑफेंडर्स। अब आपको राग द्वेष होगा कि नहीं किसी पर? बोलो, अब बोलो, राग द्वेष किस पर करोगी? बोलो, वितरागता आएगी कि नहीं आएगी? अब मैं इसका ऑल टुगेदर अनदर मीनिंग बोलती हूँ, जो आप कभी बाहर सुनोगे नहीं। ये मेरा डिस्कवरी चैनल है, ये मेरा अपना डिस्कवरी, मैंने कहीं सुना नहीं, उपयोग में आया तो आपको बता रही हूँ। आप बताना कितना सही है कितना गलत। That's why we always subscribe to this channel, ma'am. हाँ, yes, very good. Thank you, Meenu, for subscribing to this channel for the past 10 years. 10 years? 2 decades, going to be 2 decades, ma'am. Wow, see? And Meenu तो क्या है, एज फ्रोजन है, मैं जब से देख रही हूँ वो ऐसी की ऐसी है, ऐसी की ऐसी है, बस थोड़ा बेबी फैट इधर उधर होता है, बाकी तो वैसी की वैसी। हम लोग बुढ़े हो गए, मीनू तो जैसे आयुष्य कर्म को क्या बोले, नाम कर्म, एवर फ्रेश, बाहर में, अंदर का मुझे नहीं मालूम। ओके, चलो, मैं ये कह रही थी, देखो सब जीवों में अपना जीव भी आता है कि नहीं आता है, तो अपने जीव में आत्मा के अनंत प्रदेश, अनंत गुण आते कि नहीं आते हैं? उन गुणों के साथ मैत्री, ठीक है, आत्मा के गुणों के साथ मैत्री, अनंत ज्ञान दर्शन सुख के साथ मैत्री, ये सीधा समाधि का रास्ता बता रही हूँ आप। पहले तो उन गुणों की समझ, वो है बोधि, फिर उन गुणों का अनुभव, उसमें लीनता, वो है समाधि, और उसकी समझ नहीं होना वो सबसे बड़ा रोग, उसके बारे में खबर ही नहीं लेना वो रोग, खबर लेना वो आरोग्य, समझ में आ जाए तो बोधि, वो अनुभव में आए तो समाधि, और उसका परफेक्शन वो सिद्धि। ये आपका लोगस का हो गया, आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरम उत्तमम दिंतु सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। समझ में आया कि नहीं? पहला सत्वेषु मैत्रीम, आत्मा के अनंत गुणों के साथ मैत्री, तो रत्नत्रय प्रकट होगा। पाउण नाण सलीलम, लास्ट ईयर अष्टपाउड़ में पढ़ा था, ज्ञान रूपी जल को पीना, तो अपनी आत्मा के साथ मैत्री, ठीक है। गुणीषु प्रमोदम, ओहो, कितने अर्यंत सिद्ध परमात्मा ने अपने आत्मा के गुणों को प्रकट कर दिया, मैंने क्यों अभी तक प्रकट नहीं किया? डिलाइट, लुक एट देम, डिलाइट, डिलाइट मतलब हैप्पीनेस, मुदिता भाव, प्रमोद भाव,
हैप्पीनेस का भाव। अहो प्रिया मैम 35 ईयर से पढ़ा रहे, अहो भाव होना चाहिए। मीनू मैम 20 साल से पढ़ रहे, अहो भाव है। ओ अनंत अरियन सिद्ध भगवान ने केवल ज्ञान प्रकट किया, अहो अहो अहो, आश्चर्य आश्चर्य कि मैंने अभी तक नहीं। प्रमोद भाव, ठीक है। अब आत्मा के गुण जब दिख जाए तो उनमें प्रमोद करो। कैसे एक बच्चा टॉफी देख करके खुश होता है, ऐसे अपनी आत्मा का नाम सुन करके खुश हो, प्रमोद करो। आत्मा में अनंत ज्ञान का खजाना है, अनंत सुख का खजाना है, प्रमोद लाओ। आज तक मैंने उसको प्रकट नहीं किया, अपनी आत्मा के प्रति करुणा। और जब मेरी आत्मा मोह राग द्वेष करती है तो माध्यस्थ हो जाओ, वो विपरीत दिशा में जा रही है, उससे न राग करो न द्वेष करो, एक्सेप्ट करो कि ये मेरे कर्म का उदय है, लेकिन मैं तो वो हूं जो भगवान। चारों भावना समझ में आ गई। LKG मीनिंग, एडवांस लेवल मीनिंग, दोनों लगाओ आप लोग। मीनू समझ में आ गया? आई वांट टू सी एवरीथिंग इन योर थीसिस। ओके, शायद क्लास में मैं नहीं पढ़ा पाती, ऐसे बैठते तो ये डेप्थ नहीं आता, लेकिन ये गाथा आ गई ना तो मलाई अंदर से निकल गई। ओके, नेक्स्ट गाथा में चले। समझ में आ गया आपको? तो ऐसे जब अपने जीव के साथ मैत्री होती है ना, तब आपकी ऑरा, आपका ऑरा वाइड होता है। तो और आपके ऑरा में कोई भी पशु पक्षी भी आए, वो भी अपना जन्मजात वैर भूल जाते हैं, उनके मन में भी समाधि आ जाती है। They forget their enmity। भगवान के समोशरण में शेर और गाय साथ में बैठते हैं, सांप और नेवला साथ में बैठते हैं। समझ में आया कितना अद्भुत जिन शासन है? तो आत्मा का शासन, निज शासन, वही जिन शासन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट गाथा पढ़ो तो मीनू, मैं अभी हाजिर होती हूँ। Yes, ma'am. Was ma'am singing in some tune? No, right? तक विहीनो विज्जो लखनहीनो य पंडियो लोए, भाव विहीनो धम्मो तिन्नी वि गुरुई विडंबनया। तक विहीनो यानी तर्क। पढ़ लिया? गाथा पढ़ ली? हाँ, यस मैम। देखो, तक विहूणो विज्जो यानी तर्क रहित विद्या इज इक्वल टू सम्यक ज्ञान रहित ज्ञान। अंडरस्टूड? विदाउट लॉजिक ज्ञान। लक्षणहीनो य पंडियो लोए। ज्ञान तो हम लोग बहुत सीख रहे हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, लेकिन लक्षण रहित, लक्ष्य को नहीं पता, मोक्ष मार्ग का लक्ष्य नहीं पता, आत्मा का लक्षण नहीं पता, तो लक्षणहीन पंडियो लोए लोक में। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, भाव रहित धर्म तीनों ही गरुई, गरुई यानी बहुत बड़ी भारी विडंबनाएं हैं, ट्रेजेडीज हैं। विडंबना यानी ट्रेजेडी। ये गरु ई में ई है ना, बड़ी गरु ने तो गरु में पुल्लिंग लगता है, नपुंसकलिंग, इन्होंने इसको स्त्रीलिंग कर, बड़ी, बड़ा, बड़ी। गरु यानी बड़ा, गरुई यानी बड़ी, बड़ी भारी विडंबनाएं हैं। इसलिए हम लोग मद्रास यूनिवर्सिटी में जेनोलॉजी डिपार्टमेंट में MA में एक पेपर पूरा तर्क का पढ़ाते हैं। रत्नत्रय को तर्क से समझो, मोक्ष मार्ग को तर्क से समझो। और हम लोग फालतू का तर्क करते हैं कि धरती गोल है या नहीं, है ना, मेरू सूर्य की ओर जा रहा है कि सूर्य मेरू की ओर जा रहा है, सूर्य गमन कर रहा है, व्हाट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। That means we are interested in the vidya of the cosmos, not of लक्षण रहित पंडित। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में
पंडीय 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 गाथा किसको याद है? किसको याद है ये पंडीय पंडीय वाली गाथा? सब लोग परमागम पढ़े हैं ना? बहुत लोग परमागम पढ़े हैं ना? तो पंडीय 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 की गाथा मोक्ष मार्ग प्रकाशक चैप्टर नंबर 2 या 1 में दिया हुआ। बहुत अच्छी गाथा है, लिखो, आप लोग लिख लो, नहीं तो पंडीय पंडीय पंडीय, मैं फोटो भेज दूंगी उसका, नहीं तो कोई भी फोटो भेज देना उसका। पेज नंबर निकाल रही हूँ मैं, कहाँ पर है भाई? कण छोड़ी वी तुस कंडिया, कण छोड़ी वी तुस कंडिया। मैं फोटो ग्रुप पे भेजती हूँ, आप लोग देखना, ओके? फोटो भेजती हूँ, आप लोग ग्रुप में भेज। ये कुंद कुंद आचार्य का दोहा पाहुड़ का की गाथा है। दोहा पाहुड़ में ऐसे बहुत छोटे छोटे दोहे हैं, पढ़ो। पंडीय पंडीय मिल गया सबको? व्हाट्सएप पर मिल गया, दिख रहा है? पेज नंबर 16 ऑफ मोक्ष मार्ग प्रकाशक। पंडित पंडित पंडित, ओ पंडित ओ पंडित ओ पंडित, कर्ण छोड़ी वी तुस कंडिया। कर्ण का मतलब है धान, तुस का मतलब है हस्क। कर्ण को छोड़कर तुम तुस में क्या हो गए? तुस कंडिया, तुस कंडिया यानी उस तुस में, प्राप्त तुस में तुम संतुष्ट हो गए। इसका मतलब क्या है? यू नो व्हाट? आप गेहूं को से रोटी बनाते हो या हस्क से रोटी बनाते हो? लेकिन बिना हस्क के तो गेहूं नहीं होता है, और बिना एसेंस के गेहूं नहीं होता है। उसके एसेंस की वैल्यू होती है। एसेंस मतलब सार, गुण। हर कहीं गुण की पूजा होती है। आप ऑरेंज जूस लेते हो या ऑरेंज के छिलके खाते हो? आप हरा केला खाते हो कि पीला केला खाते हो? सफेद केला खाते हैं अपन, हरा और पीला जो है फेंक देते हैं। समझ में आया ना? तो पय अथ तुठोसी परमत्थ न जानई मूढ़ोसी। सी आ गया यानी तुम सी है ना, तुम क्या कर रहे हो? पद और अर्थ में तुठोसी, संतुष्ट हो गए हो। सार न, परमार्थ न जानते हो, जानई मूढ़ोसी, तुम मूढ़ हो। परमार्थ यानी रियलिटी को तुम नहीं जानते, तुम मूढ़ हो। ये सरकाजम है, सरकास्टिक वे में उनको पंडित पंडित बोल के कपड़े उतार दिए। ठीक है? तो ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं कि तर्क विहीन विद्या, हमने पद और अर्थ तो बहुत रट लिए लेकिन सार को नहीं पकड़ा, तो हम ही वो पंडित है, हम ही वो मूढ़ है। पद यानी शब्द, अर्थ यानी मीनिंग, एसेंस को नहीं पकड़ा। नेक्स्ट 6th गाथा में चलते हैं जल्दी से, अभी 5 बज जाएंगे मेरे। कोई दहिज जह चंदनम नरो दारुगम च बहुमूल्यम नासेई मानुस मनुष्य भवम पुरिसो तह विषय लोहेण। जह जिस प्रकार, कोई नरो कोई मनुष्य, चंदन के पेड़ को, दारुगम, दारुगम यानी यहाँ पर दारुगम का मतलब है लकड़ी। चंदन के पेड़ को
या चंदन को जलाता है। कैसा है वो चंदन का पेड़? बहुमूल्य, बहुमूल्यम। अगर का मतलब है यहाँ पर क्या बोले, लकड़ी, दारुगम यानी पेड़, लकड़ी। तह उसी प्रकार यह मनुष्य, मनुष्य पुरिसो विषय लोहेण, विषय के लोभ में पड़ा हुआ मनुष्य, नासे ही मनुष्य भवम, मनुष्य भव को नष्ट करता। सारी गाथाएं आप समाधि के लिए ले लेना मीनू। समाधि की तो तैयारी करता नहीं, विषय लोभ में असमाधि को गले लगाता रहता है और मनुष्य भव को नष्ट करता। विषय और कषाय। गॉट इट डियर? अल्पा जी, है ना गाथा सुंदर है, मजेदार है ना गाथाएं? Yes, very nice, ma'am. Very beautiful gathas, no? Yes, very nice. Okay. This is a favorite गाथा, 7th वाली गाथा। I think प्रवचन सार की है। जेन तच्चम विबुज्जेज, जेन चित्तम निरुज्झति, जेन अत्ता विसुज्जेज, तम नाणम जिन शासने। जिन शासने, जिन शासन में, तम नाणम उसको ज्ञान कहा है। कहा है वो ब्रैकेट में है, दिया हुआ नहीं। जे जिससे, जेन तच्चम विबुज्जेज, जिससे तत्व का बोध होता है, जिससे चित्त का व्यापार रुक जाता है, चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती, जिससे अत्ता, अत्ता यानी आत्मा, विसुज्जेज विशुद्ध होती है, उस ज्ञान को ज्ञान कहा है, सम्यक ज्ञान कहा है। बाकी सब तो इंद्रिय ज्ञान। गॉट इट डियर? 7th गाथा। हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, मन तो इंद्रियों में भरमाया। एक बहुत सुंदर भजन है, बहुत सुंदर भजन है, लिख लो, गूगल पे जाके ढूंढ लेना, नहीं तो मुझे रिमाइंड कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूं। आत्मचिंतन का ये समय आया, उसमें आगे लाइन है, मैं पूरा नहीं गा रही हूँ। हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, मन तो इंद्रियों में है भर माया। सुन लेना पूरा भजन, ठीक है? चलो आगे, समझ में आ गई गाथा? समझ में आ गई? अब इसका विस्तार में करूंगी तो टाइम पूरा हो जाएगा, आप लोग करते रहना विस्तार। जेन रागा विरज्जेज, जिससे राग से विरक्ति होती है। जेन से एसु रज्जदी, जिससे श्रेयस में अनुरक्ति होती है। श्रेयस यानी कल्याणकारी। 2 वर्ड है, प्रेयस श्रेयस, ये भगवत गीता में भी आता। प्रिय है, जो मन को प्रिय है वो प्रेयस, और जो आत्मा के लिए कल्याणकारी है वो है श्रेयस। हम जो प्राकृत पढ़ते वो प्रेयस है, जब उसको अप्लाई करेंगे आत्मज्ञान में तब वो हो जाएगा श्रेयस। अंडरस्टूड? ठीक है? जिससे श्रेयस में अनुरक्ति होती है। जेण मेतिम प्रभावेज, जिससे सभी जीवों में अपनी आत्मा के साथ मैत्री भाव प्रभावित होता है, उसको ज्ञान कहा है जिन शासन में। अब आप प्राकृत पढ़ रहे हैं कि जिन शासन पढ़ रहे हैं? जिन वाणी पढ़ रहे हैं। और ये पूरे लिटरेचर को धार्मिक लिटरेचर बोल करके हटा दिया गया हिंदी साहित्यकारों के द्वारा। प्राकृत को वो रेस्पेक्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए, इसलिए आज
देश दुनिया की भारी दुर्दशा हो रही है। भाई भाई के साथ मनमुटाव, गुरु शिष्य के बीच मनमुटाव, एक दिगंबर श्वेतांबर के बीच में मनमुटाव, हिंदू मुस्लिम के बीच में मनमुटाव। लेकिन आप इसमें देखो, कोई भी धर्म के अगेंस्ट की कोई बात आती है क्या? तो जिन शासन है ना, वो सभी प्राणी मात्र का है, सिर्फ जैनों का नहीं है। जैन लोगों के हाथ में वो बेचारा दम तोड़ रहा है। समझ में आया क्यों हम आपको प्राकृत पढ़ाने के दीवाने हैं? पागल है हम लोग, सब पागल है हम लोग। मतलब मैं तो पागल हूँ। पागल नंबर 1 में कोई गिनती है तो मैं हूँ। नेक्स्ट, खोदम खोदम सॉरी खमाए। बोलो। मैम, अनुरक्ति का मीनिंग क्या होता है? अनुरक्ति रंजदी रज्जदी रंजदी, रंजन, मनोरंजन, आसक्ति, ओके ओके मैम। अट्रैक्शन, एडमिरेशन, एडोरेशन, फॉन्डनेस, लाइकिंग। गॉट इट डियर? एनीथिंग दैट यू हैव यस नॉट? मैम, यस मैम। अब नेक्स्ट गाथा बहुत इजी है, आप लोग कराने वाले हो। पढ़ाओ मैम, तो मीनू, पढ़ाओ तो मीनू। जल्दी, यू आर ऑन म्यूट मीनू। सॉरी मैम। कोदम खमायमानं च मद्देवनाजवं च मायं च संतोषेन यलोहं जिनदुःखु चत्तारि विकसाये। जय कोदम जिनेन्द्र का मीनिंग खमाय, क्या है? जय जिनेन्द्र का मीनिंग क्या है? सब जय जिनेन्द्र बोलते हैं ना एक दूसरे को, मीनिंग क्या है? अपनी आत्मा मतलब जिनेंद्र बनने वाली है तो उसको हम जय जिनेंद्र करते हैं। मतलब अपने शुद्ध स्वरूप को हम जिनेंद्र बोलते हैं ना। इंद्रियों पर विजय। हाँ, सिंपल लैंग्वेज, इंद्रियों पर विजय। और बिना आत्मज्ञान के इंद्रियां जीत में नहीं आने वाली। आत्मज्ञान पूर्वक इंद्रिय जय होता है। जितेंद्रिय जित मोह, फिर होता है कर्मों को जीतना। जो इंद्रियों को जीतने की कला नहीं जानता, वो मोह को नहीं जीत सकता। और जो मोहनीय कर्म को नहीं जीतेगा, वो 7-8 कर्मों को नहीं जीत सकता। और जो कर्मों को नहीं जीतेगा, वो जन्म मरण में गोते खाएगा। मीनू जोड़ लेना ये भी अपने समाधि से। अब देखो यहाँ पे उपाय बता रहे, कोदम खमाए। बोलो अभी आप लोग मीनिंग बोलो। क्रोध को क्षमा से। हाँ, क्रोध को क्षमा से, क्षमा के द्वारा। जिणदु, जिणदु नीचे आया ना, जिणदु, जीते, जीतो। विधि एवं आज्ञा, उदू वाला आया ना, विधि आज्ञा, जिणदु। कोधम खमाए जिणदु, माणम च मध्यवेण, संधि हुई है वहां पर। मध्यवेण, मध्यवण मार्दव यानी से। मार्दव से, मार्दव यानी नम्रता से। मान को, ईगो को जीतो। मायम च अज्जव भावेण, ये दूसरी गाथा है। को हम उवसमेण हणे, मायम माणम च मद्दवया जिने, मायम च अज्जव भावेण लोहो संतो सवो जिने। ये आपके उत्तरायण की गाथा है। तो क्रोध को क्षमा से, मान को मार्दव से, माया को आर्जव से, लोभ का क्या करें? ये तो सब पाप का बाप है। संतोष से। संतोष से, य यानी और। जिणदु खू चत्तारी वी कसाया, डेफिनेटली इस प्रकार तुम चारों कषायों को कसाए। कषायों को 2/2 है वो। कसाए में ये दीदे नहीं है, वो नाउन है। कषाय को
चत्तारी यानी चारों। तो कशाई का जो ग्रामर है वही चत्तारी का ग्रामर है। ओके, गॉट इट। सब अभी आप लोग इसका ग्रामर निकालना, डाउट हो तो पूछना। नेक्स्ट, जद इंद्रने हिम अग्गी लवण समुद्रो नदी सहसे हिम तह जीवसण तित्ती अथिति लोगे भी लद्धम्मी। करो आप लोग मीनिंग इसका, बहुत सुंदर गाथा है, एक से बढ़कर एक गाथा है। जद एक अलग रूप है। जिस प्रकार जह होना चाहिए था क्योंकि नीचे तह है, लेकिन इन्होंने जद कहीं से प्रिंटिंग में ऐसा आ गया है या पांडुलिपि में ऐसा मिल गया है या लिखते लिखते ह्यूमन एरर से हो गया है, एनी रीजन, या हो सकता है उस समय जह जद दोनों चल रहे होंगे। ये अव्यय लिस्ट में जाके देख लेना। पर करो इसका मीनिंग कराओ मीनू, मैं सुन रही हूँ। जैसे इंद्रनेहिम अग्गी, इंद्रनेहिम बोल तो ये 3/2 हो गया। ईंधन से आग, लवन समुद्र, नदी सहसेहिम, सहसेहिम यानी हजारों नदियों से, लवन समुद्र, तह जीवस, उसी प्रकार जीवस न तिथि अतिथि लोगे भी लद्धमी। जीवस यानी जीव के, हाँ ऐसा ये जीव के, न तिथि तृप्ति, नहीं तृप्ति होती है, अथि ती लोगे भी, 3 लोक की क्या बोलते लद्धमी होने पर भी, प्राप्ति होने पर भी जीव की जैसे तृप्ति नहीं होती, हजारों समुद्रों से भी लवन समुद्र की तृप्ति नहीं होती है, वैसे ही 3 लोकों की प्राप्ति होने पर भी जीव की तृप्ति नहीं होती। करेक्ट, एकदम करेक्ट, करेक्ट है ना। जैसे आग में आप फ्यूल डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, अग्नि कभी नहीं बोलेगी बस करो। लवण समुद्र में कितना पानी गिर गया, लेकिन समुद्र कभी नहीं भरता, आ जाने दो और आ जाओ और आ जाओ, पेट बहुत बड़ा है। ऐसे ही हमारे मन में जो लोभ की खाई है वो बहुत बड़ी है। 3 लोक भी अगर उसमें आ जाए, किसी को मिल जाए, तो भी इस जीव को संतोष नहीं होता। बस खत्म आज के लिए पढ़ाई, प्रिया मैम की क्लास। अभी कारक पढ़ो या फिर संधि समास में डाउट्स है, रिवीजन करना है करो, नहीं तो अव्यय की लिस्ट करा देंगे मीनू मैम अभी आपको। अव्यय का लास्ट चैप्टर निकालो, कारक पेंडिंग रखो, मैं कराऊंगी आपको, तद्धित मैं कराऊंगी, अव्यय आप लोग करो। अव्यय कितने प्रकार के मैंने बताए आपको, उनके प्रयोग वाक्य सब देखो, ठीक है। पढ़ो, रीडिंग मारो, आप लोग पढ़ाओ एक दूसरे को, मैं देखती हूँ, पढ़ो। अव्यय लेसन निकालो, पेज 66 इन योर प्राकृत व्याकरण टेक्स्ट, पेज नंबर 66। मैं सुनती हूँ, आप पढ़ाओ। अव्यय वे शब्द हैं जिनके रूप सभी लिंगों, सभी विभक्तियों और सभी वचनों में एक समान रहते हैं, अर्थात लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार जिन शब्दों के रूपों में व्यय यानी घटती बढ़ती न हो, वे अव्यय हैं। So this we've seen, no matter which ling, which विभक्ति और which वचन it is, जो अव्यय है वो as it is रहता है, उसमें अपन कोई भी प्रत्यय जोड़ते नहीं है, बस उसको कट कॉपी पेस्ट करना होता है। तो अव्यय 5 प्रकार के होते हैं: उपसर्ग, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, मनोविकार सूचक और अतिरिक्त अव्यय। These are the 5 types of अव्यय। उपसर्ग, उवसग, जो अव्यय क्रिया, संज्ञा या विशेषण शब्दों के पूर्व जोड़े जाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। इस तरह वे नाम और क्रिया दोनों से युक्त होते हैं। उपसर्ग लगाने से शब्दों के अर्थ में विशेषता आ जाती है। So basically कोई भी क्रिया है या संज्ञा है या विशेषण है, उसके पहले
पूर्व में जोड़ा जाता है तो वो उपसर्ग अव्यय कहलाता है। इसको इंग्लिश में कभी क्या कहते हैं? उपसर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कौन बोलेगा? प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, करेक्ट। और पीछे जुड़ते हैं प्रत्यय, सफिक्स। इसको कहते हैं सफिक्स, सफिक्स। ठीक है? जैसे प्रतिक्रमण, तो प्रति इज अ उपसर्ग, प्रीफिक्स। अनइम्पोर्टेंट, तो अन इज अ प्रीफिक्स। अंडरस्टूड डियर? यस मैम। हाँ, पढ़ो। कभी उपसर्ग शब्द के मुख्यार्थ को समाप्त करके नवीन अर्थ का बोध कराता है। जैसे सरई मीन्स याद करता है, और उसके पहले अगर वी ऐड कर देते वी सरई तो भूल जाता है। ऑपोजिट मीनिंग हो जाता है। कभी तो कभी एक्चुअल उपसर्ग, मीनिंग को समाप्त करके नवीन न्यू मीनिंग हो जाता है उस शब्द तो का। ये वी वर्ड है ना, वो अलग अलग शब्दों में अलग अलग मीनिंग ले लेता है। ठीक है? हाँ, पढ़ो। अथवा जय यानी जीत तथा पराजय यानी हार। यहाँ पे जो परा प्रीफिक्स अपन ने ऐड किया उससे मीनिंग टोटली ऑपोजिट हो गया, इट हैज बिकम हार। हरई यानी ले जाता है, अवहरई यानी चुराता है, पहरई यानी मारता है, विहरई यानी विहार करता है। तो एक वो हरई के आगे अलग अलग प्रीफिक्स जोड़ने से अलग अलग मीनिंग हो गए। अवहरई, पहरई, विहरई, ये 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं। कभी उपसर्ग संज्ञा और क्रिया में विशेषता ला देते, तो फर्स्ट में वी सॉ की मीनिंग ही उल्टा हो गया। सेकंड सब डिविजन में जैसे इनकी विशेषता ला देता है। जैसे गमन यानी जाना और अनुगमन यानी पीछे जाना, दुस्स यानी द्वेष करना, पदूस वो भी द्वेष करना। कभी उपसर्ग संज्ञा और क्रिया का एक अनुसर, ये पदूस वर्ड से प्रदूषण आ गया। दूषण यानी खराब, प्रदूषण यानी प्रकृष्ट दूषण, प्रकृष्ट द्वेष। बहुत ज्यादा दूषण, तो प्रदूषण। कितने प्रकार के प्रदूषण है? पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। लेकिन जैनिज्म कहता है देयर इज वन पोल्यूशन इन द माइंड ऑफ कषाय, उसके कारण बाहर में पोल्यूशन। अंडरस्टूड? अंदर में लोभ का पोल्यूशन है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, संतोष नहीं है, पोल्यूशन है, पोल्यूटेड है आत्मा, इसलिए बाहर में पोल्यूशन। अंडरस्टूड? अंदर में समाधि नहीं है और बाहर में समाधि ढूंढ रहा है, कहां से मिलेगी? सो इन जैनिज्म इट इज टोटली बॉटम अप अप्रोच। अपनी आत्मा पर काम करना है, जगत में शांति हो नहीं, अपनी आत्मा में पहले शांति। बट वी आर वरीड अबाउट वर्ल्ड पीस, नो आत्मा का पीस। आत्मा का पीस इज इन पीसेस एंड वी वांट वर्ल्ड पीस। लिख लो मीनू अपने थीसिस के लिए। चलो आगे चलो। हाँ, अभी नेक्स्ट उपसर्ग जो क्रिया में विशेषता ला देता है। संज्ञा और इजी है ना, अच्छा है ना, क्लियर है ना? एकदम इजी वाला मैं पहले कराऊंगी, बाद में हार्ड वाला आएगा। ठीक है? हाँ बोलो। कभी उपसर्ग संज्ञा और क्रिया का अनुसरण करता है। जैसे वसई यानी रहता है, अहि वसई। नहीं, उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला पढ़। कभी उपसर्ग संज्ञा और क्रिया में विशेषता ला देते हैं। जैसे गमन यानी जाना, अनुगमन यानी पीछे जाना, दुस्स द्वेष करना, पदूस यानी हाँ ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया था। सॉरी सॉरी, द्वेष। मेरे से गलती हो गई, सॉरी। आपने कभी पढ़ लिया। उपसर्ग संज्ञा और क्रिया का अनुसरण करता है। जैसे वसई मीन्स रहता है, अहि वसई रहता है, जय भी जीत है, विजय भी जीत है। प्राकृत में निम्नलिखित उपसर्ग परिगणित हैं। उपसर्गों के विभिन्न प्रयोग प्राकृत कोश से जानना चाहिए। कुछ उपसर्गों के सामान्य प्रयोग निम्नलिखित हैं। तो देखो, फर्स्ट कॉलम में उपसर्ग दिया हुआ है, सेकंड कॉलम में क्रिया दी हुई है,
थर्ड कॉलम में संज्ञा के साथ वो जुड़ता है तो क्या होता है, और फोर्थ कॉलम में विशेषण के साथ जुड़ता है तो वही वर्ड क्या होता है। ठीक है, करो, करते हैं हम इनको सब, जल्दी जल्दी कराइए मीनू। मैम जस्ट हाफ मिनट मैम, somebody is at the door, just half minute. आराम से आराम से आराम से। देखो प उपसर्ग है, जब भासे में लगा तो उसका हो गया प्रभास, प्रकाशित करना। सिद्धि में लग गया तो प्रसिद्धि, प्रसिद्धि, नाउन हो गया। फिर वो आदमी बहुत प्रसिद्ध है, कैसा है, प्रसिद्ध, विशेषण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट परा, परा क्रिया में लगा तो विचार हो गया, परामरिसई। और संज्ञा में लगा तो हार हो गया, पराहव। और पराजय, हराया हुआ। ऐसे करके आपको ये लिस्ट पढ़ लेना। समझ में आ गया कैसे पढ़ना, ये लिस्ट पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब क्या है, इंग्लिश में कौन बोलेगा, इंग्लिश में कौन बोलेगा? वेरी गुड, एडवर्ब, आपको सिखाया हुआ है एडवर्ब। अभी देखो ऊपर है ना, आपने पढ़ा ना, फर्स्ट पेज नंबर 66 में ऊपर आइए, 5 नाम दिए हुए हैं, उसमें क्रिया विशेषण के ऊपर लिख दीजिए एडवर्ब। फिर समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक यानी क्या है? कंजक्शन। कंजंक्शन, वेरी गुड। फिर एक आएगा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन आएगा, वो इसमें नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। वो कहाँ दिया हुआ है? वो प्रेपोजिशन आपके क्रिया विशेषण में उन्होंने प्रेपोजिशन को ले लिया। फिर मनोविकार सूचक में आपको लिखना इंटरजेक्शन, और अतिरिक्त अव्यय में संक्रु हेक्रु लिखना है। गॉट इट डियर, गॉट इट। अब क्रिया विशेषण यानी सब एडवर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, है ना, सब एडवर्ब्स है। और वाक्य प्रयोग है, वो सब वाक्य पढ़ो, और वो सारे वर्ड के मीनिंग आपको पढ़ लेना है। कुछ कुछ अभी मीनू मैम पढ़ा देंगे, आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। एथ यहाँ, एथम, तथ वहां, कथ कहाँ। सवत, ठीक है? सब जगह में। हाँ, अन्यथ, अन्यथा दूसरी जगह में। इह is also यहाँ। एथ, एथम, इह all means यहाँ। को यानी कहाँ से, इयो यहाँ से, कहिम कहाँ, जथ जहाँ, कथई कहीं पर या किसी जगह, सब ओ सब और से। उवरिम या अवरी, उवरी इज ऊपर। अह, अहे, अहत्ता नीचे। पच्छा यानी पीछे की ओर या पिछला भाग। अग्ग ओ आगे या सामने। पूरो ओ इज ऑल्सो आगे। बहिया, बही, बहिम, बहिता इज बाहर। दूरम इज दूर। अंतो भीतर। समया यानी पास। उपिम इज अगेन ऊपर। अभित्तो या अभी दो इस चारों ओर से। ये हो गए स्थान वाचक क्रिया विशेषण अव्यय। नेक्स्ट कालवाचक। इनके प्रयोग वाक्य देख लो, इनके मैं वाक्य प्रयोग यहाँ वाक्य रहता एक दो, हूँ। मीनू एक दो पढ़ाना फिर छोड़ देना। हाँ, ऐसे ही मैं- कालवाचक एक दो पढ़ाना फिर छोड़ देना। ऐसे ही पूरा लेसन आपको आराम से पढ़ सकते। ठीक है, आप लोग कर लेंगे ये लेसन। यस तो मैम। अब नेक्स्ट क्लास में कारक लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कारक लेंगे, और तद्धित भी लेने की कोशिश। नहीं हो पाएगा कारक, थोड़ा चलेगा, लंबा है। आप लोग पढ़कर आइए, आज जैसे डाउट लाए वैसे सब डाउट लेकर आइए। आप लोग एक एक जन एक एक कारक पढ़ाइए, एक एक जन एक एक कारक पढ़ाइए, डाउट लेकर आइए, मैं सिर्फ डाउट्स क्लियर कर दूं। क्लियर? और तद्धित भी हो सके तो पढ़कर आइए, अपन डाउट्स क्लियर करें। तो नेक्स्ट क्लास में दिस मंथ विल वाइंड अप दिस बुक। ओके, अब आपके जो ये वाली बुक है गद्य पद्य में कितने लेसन हो गए अपने, टिक डाल दो।
एक ही तो हुआ ना। 1 2 प्रवचन सार 3 लेसन हो गए। प्रवचन सार मैंने करा दिया फर्स्ट क्लास में, रीडिंग मारो, फिर महु बिंदु दृष्टांत सेकंड क्लास में हुआ, फिर आज अर्हत प्रवचन हो गया। मीनू आप दशवैक कालिक लेने की कोशिश करना, लेसन नंबर 3। और आप लोगों में जी, से मैम। कोई कौन पढ़ाएगा? रोहिणी नाये, मेरु प्रभाती, शिल्पी पुत्र की कथा आप लोगों को पढ़ाना। पढ़कर आइए, डाउट है तो लेकर आइए। Then I It's will just go like to two Acharya. stories which we've done in our certificate course also, जैसे 4 दामादों की कथा है, विदुषी पुत्र वधु है, वैसे ही ये stories है नीचे वाली। रोहिणी इज दैट वो चावल के 5 दाने की कहानी, हाँ, चावल के 5 दाने की कहानी पढ़ लो। मैं ज्ञाता धर्म कथा सूत्र उठा के पढ़ लो। इसी प्रकार मेरु प्रभाती मेघ कुमार की स्टोरी है, मेघ कुमार की ज्ञाता story धर्म है। कथा में से लेकर पढ़ लो। Yeah, we can do these, ma'am. यू कैन डू दिस टू नो मीनू, दशवैक Yes, ma'am. कालिक और ये दोनों स्टोरीज आप सबकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं। ठीक है मीनू, जी, नाउ आई ma'am. लीव द क्लास, आप लोग देख लेना। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. जय जिनेंद्र। साता रखना, ma'am. Thank you, ma'am. जय जिनेंद्र। वापस मेरी है ना 7:30 to 9:30 क्लास है। आज जय सुबह से जिनेंद्र। दिस इज द थर्ड क्लास, देन फोर्थ क्लास। आई एम टायर्ड, थैंक यू, बाय। आता है मैम। मैम साता रहना। थैंक यू मैम। गुरु प्रसाद, देव थैंक यू गुरु मैम, साता प्रसाद। में रहना। जय थैंक जिनेंद्र यू, मैम। थैंक यू, थैंक यू, बाय। जय जिनेंद्र। ओके, चलिए प्रयोग वाक्य देख लेते हैं। पेज नंबर 70। मैं यहाँ रहता हूँ। सो मैं रहता हूँ तो अहम वसमी, और यहाँ के लिए जो ऊपर दिए हुए हैं अव्यय का लिस्ट, यहाँ के लिए यू कैन यूज इथ, इथम, इह, है ना। ऐसे ही और कौन सा सेंटेंस है, जैसे विमान यहाँ से उड़ेगा, तो विमान उड़ेगा सिंपल सेंटेंस हो गया। विमानम उड्डीही। अब यहाँ से के लिए उन्होंने लिस्ट में क्या दिया है, ईओ, तो विमानम ईओ उड्डीही। फिर सेकेंड सब डिविजन से देखें, अगर तुम रथ के पीछे जाओ, थर्ड सेंटेंस, तुम रथ के पीछे जाओ, तो तुम जाओ तो हो गया तुमम गच्छहि, ये विधेयम आज्ञा का सेंटेंस है, तुम जाओ। रथ के पीछे, तो रहस्य, पीछे के लिए क्या वर्ड है, पीछे की और पच्छा, तो तुमम रहस्य पच्छा गच्छहि। वह दौड़ता हुआ मेरे पास आता है, तो वह आता है सिंपल सेंटेंस। सो आता है के लिए क्या है, आ गच्छई, या यहाँ पे आवई लिया हुआ है। दौड़ता हुआ, तो ये हो गया वर्तमान कृदंत, तो धावंतो। मेरे पास, तो मेरे पास के लिए कौन सा वर्ड है ऊपर, पास के लिए समया, सो धावंतो ममम समया आवई। ये मेरे पास के लिए ममम कौन सा है वर्ड, तो कौन सी विभक्ति का लिया है ममम, थर्ड सप्तमी का है, लेकिन आई थिंक सेकंड में द्वितीया में यूज किया हुआ है, लाइक द रूल वी हैड बिफोर। द्वितीय द्वितीय है ना मम। द्वितीया। वह आता है, किसके पास आता है, मेरे पास आता है। Is it because of the movement, that rule of movement, that gacha? ऐसा कुछ नहीं है ना। There is a rule, no, for dvitiya you use when there is वो जाने के समय लिए आ भी। गया ना मैम, समय मेरे पास समीप आता है, हाँ, उसके हाँ, that पहले samay, हाँ, मेरे yeah. मम से द्वितीय अभी लगता अपन है। ने जब वो द्वितीया के रूल्स किए थे, उसमें आया ना समीप में, हाँ, Samay, पास में में। द्वितीया। so it's that rule, not the, I took the movement rule, but okay. तुम भीतर क्यों गए, तो भीतर के लिए वर्ड दिया हुआ है अंतो, है ना। तुमम अंतो किम गओ, क्यों गए के लिए किम गओ। फिर कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का लिस्ट है, इयानिम, इयानीज, इस समय, तयानी। somebody is on unmute, disturbance आ रहा है।
तयानी तयाने में उस समय, जइया जब, कैया कब, तैया तब, जाव इस जब तक, काहे कब, जम जब, ता तब, पुनो फिर। ऐसे करके और भी वर्ड्स दिए हुए हैं पीछे तक। एक सीएम, एक सी, ए गैया, ए गया, ये सारे होते एक समय में। कल्लिम इज आने वाला कल या गया हुआ कल, दोनों पास्ट एंड फ्यूचर दोनों के लिए कहा कल्लिम। सुवे यानी आगामी कल, पग्गे यानी प्रातःकाल, अज्ज या अज्जम इज आज, पायम इज प्रभात। सो पग्गे इज फॉर प्रातःकाल, पायम इज प्रभात, सायम इज संध्या का समय, पई दिनम इज प्रतिदिन, नत्तम इज रात के समय, दोसा इज रात में, दिव्वा इज दिन में, अहुना यानी इस समय या अब अभी, पुरम इस पहले या पूर्व में, लहुम यानी शीघ्र, एक सरियम शीघ्र तुरंत, झत्ती झड़ती दैट ऑल्सो मीन शीघ्र, तो शीघ्र के लिए काफी नीचे भी सज्ज, सज्जम इज फॉर शीघ्र, चिरम इज दीर्घ काल तक, पुवी या पुविम पूर्व में या पहले, कयावी न इस कभी नहीं, पच्छा इस बाद में, अनंतरम बाद में, नित्यम इज नित्य सदा ऑलवेज। प्रयोग वाक्य देख लेते हैं। इस समय तुम घर पर ही ठहरो, तो इस समय के लिए उन्होंने ऑलरेडी वर्ड दिया हुआ है, इट इज इयानिम और इयानी। तुम घर पर ठहरो, तुम ठहरो इस सिंपल सेंटेंस हो गया है ना, तुम ठहरो विधि एवं आज्ञा वाला सेंटेंस है, तुमम तुम तुहा। ठहरो के लिए यहाँ पे चिट्टा वर्ड लिया हुआ है, अपन ने ही सुध ही शून्य किया था, यहाँ पे ये शून्य वाला यूज हुआ है, तभी कोई प्रत्यय लगा नहीं है। वैसे अगर करोगे तो ठा ही सूद ही लग जाएगा। घर पर इस गिहे, ही के लिए भी, ही के लिए कोई वर्ड दिया हुआ है पीछे, एव दिया है, एव यहाँ पे लिखा है पर लिस्ट में दिया हुआ नहीं है, बट उन्होंने यूज किया है, ही के लिए एव यूज किया है। आप चाहो तो ऊपर अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हो। They've used the अव्यय एव for he. Just 1 minute. ठीक है, नेक्स्ट क्या सेंटेंस है? Miss, they've given it on page 76. Ye का एव, अच्छा, इज page गिवन। 76 में, page 76. अच्छा ठीक है, ओके। फिर नीचे लास्ट वाला सेंटेंस लिखिए, जब मेघ गरजते हैं तब मोर नाचते हैं। तो यहाँ पे मेघ गरजते हैं सिंपल सेंटेंस हो गया मेहा गज्जंती, और मोर नाचते हैं वो भी हो गया मोरा नचंती। जब और तब के लिए ऊपर जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जब के लिए यू हैव जइया, तब के लिए तहिया, या जब के लिए देयर इज आल्सो वन जम, और तब के लिए एक ता भी है। सो व्हाटएवर यू वांट यू कैन, यहाँ पे देव यूज्ड जम एंड ता। ठीक है, बाकी ऑप्शंस हैं आपके पास, जइया तैया कैन आल्सो बी यूज्ड। Ma'am, is there a particular pair like jam goes with ta and jaya with taya, kaya, taya? Or No, can I you do don't think so. taya नहीं, and ta also? You can, it there's no, okay. सेकेंड सब डिविजन में देखिए, तुम कल कहाँ गए थे, तो कल के लिए तो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है कल्लिम, है ना, कल्लिम ही है, आने वाला कल, गया हुआ कल। तो तुम कहाँ गए थे सिंपल सेंटेंस हो गया, तुमम कत्थ गच्छीय, और कल्लिम ऐसे ही कट कॉपी पेस्ट है। फिर बालक रात में शीघ्र सोने के लिए गया, 9th सेंटेंस, बालक गया, ये हो गया सिंपल सेंटेंस, बालो गो, रात में
रात में के लिए यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है ना, रात्रि में, दैट इज दोसा। और शीघ्र, शीघ्र के लिए एक वर्ड है सज्ज, सज्जम, फिर क्या है लहुम, फिर और क्या है झत्ती, झड़ती, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है। सदा सत्य बोलो, लास्ट सेंटेंस। सत्य बोलो इज द सिंपल सेंटेंस। सत्यम वदहि। Why is it वदहि? Why is बोलो वदहि? विधि एवं विधि। ये आज्ञा है ना, आगे है ना, तुम ये सच आज्ञा है। बोलो। करेक्ट। बट तुम हिडन है, तुम हिडन है, तुम सदा सत्य बोलो, तो तुम के हिसाब से ही सुधी का ही लगा है। नित्य के लिए, सदा के लिए यूज कर लिया उन्होंने अव्यय नित्यम। ठीक है। थर्ड है प्रकार वाचक क्रिया विशेषण अव्यय। व्हाट डू यू मीन बाय प्रकार वाचक? क्षेत्र और काल का समझ में आया। व्हाट इज प्रकार वाचक? मैम उसमें सब प्रकार ही है, भली प्रकार, इस प्रकार, उस प्रकार, जिस प्रकार, पूरा Okay. प्रकार 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 ही है। Adjective of manner. भली प्रकार के लिए सम्मम, इस प्रकार के लिए इत्थम और या एवं, जिस प्रकार के लिए यू हैव जहा, जह, जहेव, उस प्रकार के लिए तहा, तह, तहेव, धीरे धीरे के लिए सनियम, अन्यथा के लिए अन्नहा, जैसे तैसे यानी जह तह, जह तहा, किस प्रकार इस कहम, कह, बहुत प्रकार से इस बहुसो, एंड प्राय यानी मोस्टली वो है बहुहा। प्रयोग वाक्य देख लें। कार्य करने से पहले तुम भली प्रकार से चिंतन करो। तो कार्य करने से पहले, तो ये हो गया कज्ज करण, कार्य हो गया कज्ज और करने से के लिए हो गया करण। तो कज्ज करणेन, पहले के लिए ऊपर का वर्ड यूज कर लेंगे। क्या वर्ड है पहले के लिए? पूरम है ना, वो क्रिया कालवाचक वाले में आया हुआ है। यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है? पुविम। तुम चिंतन करो, तो तुमम चिंत ही, ये तो अपना नॉर्मल हो गया। और भली प्रकार से के लिए ऊपर से समम एज इट इज लिखना है। ठीक है। फिर जिस प्रकार वह सुख चाहता है उसी प्रकार मैं भी सुख चाहता हूँ। तो वह सुख चाहता है सिंपल सेंटेंस हो गया। सो सुहम इच्छई, मैं भी सुख चाहता हूँ। तो अहम भी सुहम इच्छामि या इच्छामि। और जिस प्रकार उसी प्रकार के लिए ऊपर से जिस प्रकार के लिए आपके पास बहुत ऑप्शंस है। यू हैव जह, जहां एंड जहेव। यहाँ पे जह और जहां यूज किया है, तो उसी प्रकार में तह और तहा यूज किया। अगर आप जहेव यूज करेंगे तो वो भी राइट है, और तहेव यूज करेंगे उसी प्रकार के लिए तो वो भी राइट है। ठीक है। लास्ट 10 सेंटेंस। प्राय बालक माता की तरफ स्नेह करता है। तो बालक स्नेह, बालक करता है इज द सिंपल सेंटेंस। बाल ओ करई, स्नेह को करता है तो स्नेह हो जाएगा द्वितीय स्नेहम। माता की तरफ, तो मायम, माता की तरफ के लिए पड़ी कहां से आया? ये प्राय तो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो गया बहुआ। फ्रॉम वेयर हैज दिस पड़ी कम तरफ? अभी कारक में आया ना मैम, पड़ी की तरफ लगाए तो माता की तरफ और की तरफ, अपन द्वितीय विभक्ति में पढ़े ना वो, हाँ, ये द्वितीय उसमें विभक्ति। आया पड़ी। करेक्ट। ठीक है। तो ये हो गया प्रकार वाचक क्रिया विशेषण अव्यय। नेक्स्ट है विविध क्रिया विशेषण अव्यय। उत्तर से यानी उत्तर ओ, अलग यानी पुह पिहम, थोड़ा यानी इसिम, इसिम इसी, इसी, या मनयम या किंची, अवश्य यानी अवसम, अथवा यानी अहवा, बस या पर्याप्त इज अलम, स्वयं इज स्वयं, इसलिए इस कारण से ओ, साथ यानी सह, समम, सध्यम,
या समयम सम्मम, समीप हो गया समया, व्यर्थ है मुहा, बिना के लिए बिना, केवल इज नवर नवरम, बाद में इज नवरी, एकदम सहसा सहसती, ही इज एव, वो भी अपन ने देखा, यदि इज जई, निश्चय इज नून नूनम, क्योंकि या जिससे, उसके लिए है जो, अनेक के लिए है नाना, उदाहरणार्थ इस तम जहा, निश्चय पूर्वक इस खलु, ये बहुत बार अपने को गाथा में और स्टोरीज में आया हुआ है खलु, क्योंकि इस जम, नहीं के लिए नो न नवी, इसके पश्चात यानी तो तत्तो, तत्पश्चात यानी तये, अतीत तियम, परंतु परम, परोपरम या परुपरम, इस परस्पर में आपस में, फिर यानी पुनरवि, जिससे इस जैन, बहुत यानी अतीव, क्यों इस किन्नम या किन्नो किस लिए, एक बार यानी सही, सदा यानी सया, फिर का है वर्ड पुनः, असई असईम असई, ये हो गया बार बार या अनेक बार के लिए, या वापस पुनः पुनः, मुहु मुहम, और एक बार के लिए एक और एक वर्ड है, ऊपर अपने को सेकंड डिवीजन में फर्स्ट वर्ड था सही, और यहाँ पे लास्ट वर्ड है एय हुतम, ये दोनों शब्द है एक बार के लिए, सुख पूर्वक इस सुहम, दुख पूर्वक इस दुहम, स्नेह पूर्वक इस स्नेहेन, पूर्ण आदर पूर्वक इस सवयारेन। प्रयोग वाक्य फर्स्ट सेंटेंस, वह उत्तर से आया, तो वह आया इस, तो सिंपल सेंटेंस, सो आग ओ, उत्तर से, तो उसके लिए अपने पास वर्ड है उत्तर ओ। फिर फोर्थ सेंटेंस, तुम थोड़ा कार्य करो, मैं शेष कार्य करूंगा, तो तुम कार्य करो, सिंपल सेंटेंस हो गया, तुमम कज्जम करही, तो थोड़ा के लिए क्या वर्ड है यहाँ पे ऊपर, मनयम, और मैं शेष कार्य करूंगा, तो अहम शेषम कज्जम, फ्यूचर टेंस है ना, करूंगा, तो करिस्सामी। फिर कौन सा सेंटेंस देखेंगे, 12th सेंटेंस, सीता राम के साथ वन में जाती है, तो सीता जाती है, सिंपल सेंटेंस है सिया गच्छई, राम के साथ, तो के साथ के बिना में तृतीया लगता है, तो राम हो गया रामेण, और साथ के लिए ऊपर वर्ड दे दिया समय समयम, और वन में जाती है, जाने के अर्थ में द्वितीया होता है, तो वन को ले लिया वनम। फिर का क्या है, और वह 18th वन, वह वहां ही ठहरा, तो वह ठहरा वापस भूतकाल सेंटेंस हो गया, सो थियो, वहां ही के लिए ऊपर वर्ड दिया है तथेव। ऐसे करके खूब सारे सेंटेंसेस हैं। सेकंड सब डिविजन में देखें, पर का उपकार करने वाले हैं परमेश्वर। इज इट कंटिन्यूइंग? एक बार आप मुझे क्षमा करें। पर का उपकार करने वाले हैं परमेश्वर, एक बार आप मुझे क्षमा करें, दैट्स द सेंटेंस। ठीक है, पर का उपकार यानी पर उवयारा, परमेसरा, परमेश्वर का हो गया परमेसरा। एक बार के लिए क्या वर्ड है, सही, आप मुझे क्षमा करें, तो यहाँ पे आदरवाचक बहुवचन लिया, परमेसरा है, तो यहाँ पे तुभे तुम्हें तुझे लिया कि आप क्षमा करें। खमह, तुभे खमह, किसको, मुझको क्षमा करना है, तो ममम मम्मी वाला ममम आ गया 2/1। What is this अहो? The first one, अहो पर उवयारा परमेसरा, संबोधन। अच्छा, अहो परमेसरा, ठीक है, ठीक है। तो अहो परमेसरा में ये विशेषण है, पर का उपकार करने वाला है परमेश्वर, तो अहो पर उवयारा परमेसरा,
सई तुभ्ये ममम खमः, एक बार आप मुझे क्षमा करें। फिर 5th सेंटेंस देखिए, बार बार झूठ मत बोलो। बार बार के लिए वर्ड आ गया मुहु मुहम, झूठ के लिए है झूठ को मत बोलो ना, तो झूठ है ऑब्जेक्ट द्वितीया, तो मौसम न वद्दही। 3rd सब डिविजन में देखिए 4th सेंटेंस, शिष्य के द्वारा पूर्ण आदर पूर्वक गुरु प्रणाम किया गया। शिष्य के द्वारा तो हो गया 3/1, शिष्येन, पूर्ण आदर पूर्वक के लिए वर्ड आ गया यहाँ पे सव्वायरेन, गुरु प्रणाम किया गया तो गुरु पनमियो। Excuse me, ma'am. Yes. Yeah, I missed the word अहो। अहो मतलब क्या बताया आपने? वो संबोधन करते हैं ना, अहो परमेश्वरा। हे परमेश्वर लिखा है उधर, उधर लिखा है हे परमेश्वर। ठीक ठीक। बस हो गया ये अपना, क्या नाम है, द फर्स्ट कौन से, ये क्रिया विशेषण। तो अव्यय 5 प्रकार के थे, उपसर्ग वाले अपन ने देखे, क्रिया विशेषण वाले देखे। अब 3rd टाइप है समुच्चय बोधक अव्यय। चलिए कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? यस प्लीज। समुच्चय बोधक अव्यय दो या अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। कुछ निम्नलिखित है, य, वा, किंतु, जई, तहवी, तेण, जेण, तेणेव, जेणेव, किम, किणा, जाव, ताव, आम, आमम आदि। इसका इंग्लिश वर्ड क्या बोला मैम ने समुच्चय बोधक अव्यय को? कंजंक्शन। ओके। दो वर्ड को ज्वाइन करने वाला। अब आप एक पढ़िए, दो, कुछ उदाहरण के वाक्य कीजिए। which one should I do? Any random, just pick 2-3 from the 12. सेकंड, राजा अथवा मंत्री विचार करते हैं। राया मंतीवा वियारई, मतलब राजा विचार करते, सिंपल इज राया वियारई, अथवा वहां आ गया और मंती। नेक्स्ट 5th, जब तक तुम पढ़ोगे तब तक मैं तुमको पालूंगा। जब तक इस जाव तुमम पढ़ी ही सी, तब तक इस ताव अहम तुमम पाली हिमी, मैं तो तुमको बेसिकली पालूंगा। तुम पढ़ोगे एक सेंटेंस है, मैं तुमको पालूंगा दूसरा सेंटेंस है। इन दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने वाला है जब तक और तब तक। तो इसको बोल दिया कंजंक्शन समुच्चय बोधक अव्यय। वही कहा है ऊपर, दो या अधिक शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने वाले। तो इट कैन ईदर बी 2 और मोर वर्ड्स और सेंटेंसेस। तो इस अभी जो सेंटेंस अभी जो आपने किया वो था 2 सेंटेंसेस। ऊपर आपने जो किया राजा अथवा मंत्री, वो हो गया 2 वर्ड्स को कनेक्ट करने वाला। ठीक है, ओके। और एक सेंटेंस नीचे में से चूज कर लीजिए 10, 11, 12 में से कोई। 9th है ना, उसमें स्टार्टिंग में आता है, क्योंकि यहाँ भौरों की आवाज सुनी जाती है इसलिए कमलवन जाना जाता है। क्योंकि इस जेण यहाँ भौरों की आवाज सुनी जाती है। अथ भमरुवम सुनी जई, तेण इसलिए अथ कमलवनम जानी जई, कमलवन जाना जाता है। यहाँ पे इसलिए के लिए तेन यूज हुआ है ना, तो अथ किसके लिए आया है? यहाँ के लिए मैम, यहाँ के लिए आया है। यहाँ के लिए आता है। ऊपर वाले सेंटेंस में है चूंकि यहाँ भंवरों की आवाज सुनी जाती है इसलिए यहाँ कमलवन जाना जाता है। अच्छा, हाँ है ना, ऊपर जेन अथ, वैसे तेन अथ। बराबर, चूंकि यहाँ इसलिए वहां, बराबर। ठीक है, मनोविकार सूचक अव्यय कोई और पढ़िए।
मनोविकार सूचक। और कोई बोलो। अच्छा अल्पा मैं जी, पढ़ सुतेश्वर जी, श्री बाला जी आंटी, हाँ एनीबॉडी? मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। यस। मनोविकार सूचक अव्यय हर्ष, खेद, दया, शोक, क्रोध आदि विभिन्न भावों की सूचना देने वाले कुछ निम्न अव्यय है। मतलब ये भाव को प्रदर्शित करने वाले हर्ष, खेद, दया, शोक, क्रोध जो भी। फिर हा, अरे, धी, आ, अम्मो, खू, हंदी। तो अब धिक्कार, दुर्जन को धिक्कार बोले तो धी दुर्जनम। फिर खेद है कि उसका आचरण पशु के समान है। तस्स आयारो पशु सरिसो अत्थि। खेद है के लिए आ गया, खेद के लिए आ गया। और उसका आचरण तस्स आयारो, उसका मतलब 6/1 आ गया और आचरण पशु के समान है। पशु तो के उसका समान के लिए पशु तस्य सरिसो। इज 6/1, हाँ, आचरण इज 1/1। 1/1, हाँ, आयारो और वो पशु के पशु के समान समान, है। मतलब पशु सरिसो और है अत्थि। बराबर। हंदी सो नरिंदस इसई। अब वो विषाद या खेद के लिए है हंदी। तो विषाद या खेद है कि वह राजा से ईर्ष्या करता है। वह ईर्ष्या करता है, सिंपल सेंटेंस हो गया। सो सेंटेंस, हाँ इसई हाँ राजा से ईर्ष्या करता है, तो वो हो गया नरिंदस। हाँ। और विषाद या खेद के लिए अव्यय हंदी जस्ट कट हंदी कॉपी हंदी पेस्ट किया। हंदी। ठीक है, somebody else अतिरिक्त अव्यय। चलिए, we can finish this, we have 10 more minutes. ये तो Please volunteer. हेतुवर्धन। अच्छा मैं ही करवा देती मैम, खत्म हो जाएगा, 6 बज गई है। करिए अतिरिक्त कोई अव्यय। और, आप क्यों चुप हाँ, बैठे सब लोग? अल्पा जी, सुचेता जी, प्रिया, मनीषा जी। 6 बजने के लिए। क्विकली, नहीं तो नाम बुलाना पड़ेगा। खुद वॉलंटियर कर लीजिए। क्या बात है, फिर भी My Hindi is not so फिर भी good, ma'am. So to read it is, Shri Balaji is reading well, ma'am. Exactly, it will be That's- time consuming then, ma'am. Because it's tough to read this. That's all. चलिए, इस बार जाने दे रही हूँ, अगले हफ्ते पढ़ना पड़ेगा। चलिए श्रीबाला आंटी कंटिन्यू। अतिरिक्त अव्यय कृदंतों में हेत्वर्थक कृदंत और संबंधक कृदंत अव्यय होते हैं। जैसे नच्चिउम हेत्वर्थक कृदंत, नच्चिउन नच्चिता ये संबंधक भूत कृदंत। उत्तम प्रत्यय और खुत्तो प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं। जैसे ति उत्तम और तिखुत्तो। पंचमी अर्थक प्रत्यय अव्यय होते हैं। जैसे सवत्तो, सवदो, सवो, मतलब ये पंचमी अर्थक जो आते हैं वो तो दो लगाए हुए हैं, वो भी पंचमी अर्थक प्रत्यय अव्यय हो सकते हैं। सप्तमी अर्थक तो भोक्रू में लगाते हैं ना? नहीं मैम, इसमें भी तो लगता है ना अपने को। ओ तो दो सवत्तो, सव ओ। नहीं, इसमें तो लग रहा है, हाँ, बट हाँ, अपन यूजुअली ओयो तो अपना हाँ, भूतकालिक वो भूतकालिक कृदंत में लगता है, पर ये पंचमी अर्थक प्रत्यय हो गए ना, इसलिए ओ यो तो दो। फिर सप्तमी अर्थक में जही, जह, जत्थ, जिस स्थान में, उस स्थान में, ये भी अव्यय में मतलब आ सकते हैं। जब भी कभी कभी अपन इसमें भी पढ़ते हैं, पर इसमें भी आते हैं। फिर अव्ययी भाव समास अव्यय होते हैं। जैसे अव्ययी भाव समास, वो गुरु के समीप। अपने को ये समास में पढ़ा है अव्ययी भाव समास में। बराबर। अनुभोयनम, भोजन भोजन के पश्चात। पई नैरम, प्रति नगर, मतलब प्रत्येक नगर में। पई दिनम, प्रतिदिन। पई घरम, प्रति घर। जहाँ संति अनाइकम्यून, शक्ति की अवहेलना न करके, शक्ति के अनुसार। ये पहले पद में जहाँ पई पई ये सब अव्यय आते थे, ये अव्यय भावी समास हो जाते हैं। और ये इसके वाक्य के प्रयोग है ना। कुछ 1-2-3 वाक्य करा दीजिए। हाँ, सा नच्ची उनम नच्चिता, जैसे शंक्रु है, वह नाचकर थकी। फिर ये पंचमी अर्थक, सत्तु ही नरिंदो, सवत्तो, सवदो, सवो, पड़िरुद्धो। शत्रुओं द्वारा राजा सब ओर से रोक लिया गया। ये पंचमी अर्थक हो गया। फिर तुमम जही, जह, जत्थ, वससी, तुम जिस स्थान में रहते हो,
ये सप्तमी अर्थक प्रत्यय लग गया तो ये अव्यय सप्तमी अर्थक प्रत्यय हो गया। फिर उसके बाद में ये फिर समास अव्यय समास जैसे साहू पई घरम भिक्कतम गच्छे 18th हला, साधु प्रति घर भिक्षा के लिए जाता है। बस यही है मैम। साधु जाता है सिंपल सेंटेंस हो गया, भिक्षा के अर्थ के लिए जाता है तो भिक्कतम, हाँ और प्रति घर के लिए पई घरम, जस्ट कॉपी पेस्ट। ठीक है, सो वी आर डन। ये मनोविकार सूचक अव्यय को क्या कहते हैं इंग्लिश में? जैसे भी मैम ने इंटरजेक्शन बोला, इंटरजेक्शन बोला मन के मनोविकार। भावों का, इंग्लिश में नहीं मालूम मैम, मन के भाव है। पर मुझे तो ये एक्सक्लेमेटरी लग रहा है मैम। Yeah, it's more exclamatory. क्रिया विशेषण को एडवर्ब कहा, समुच्चय बोधक को कंजंक्शन कहा, मनोविकार सूचक एंड अतिरिक्त अव्यय she said संक्रू एंड हेक्रू will come। ठीक है, ओके चलिए। ये क्या बोले थे? इंटरजेक्शन कुछ बोले थे मैम ने इंग्लिश में, अपने को I don't know English। Yeah, she said confirm कर लेंगे। interjection. She said कंफर्म कर लेंगे नेक्स्ट वीक। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलिए, we are done with the way, please go through it, and ma'am has asked you to go through the remaining of the karak thing and come with doubts, ठीक है, so that she can do it, brush it up quickly। मैम ये चलिए। अभ्यास के सेंटेंस भी करके आने हैं क्या? ये होमवर्क नहीं है, क्योंकि होमवर्क करने तो हैं आपको सूनर और लेटर, बट फॉर नाउ शी हैज सेड कि कारक, क्योंकि शी विल बी डूइंग नेक्स्ट क्लास ना, तो शी सेड यू टू गो थ्रू दैट एंटायर कारक चैप्टर एंड कम। ओके मैम। बट yes, you have to do the अभ्यास for this also। अव्यय के जो पीछे में अभ्यास दिए हुए हैं 30 sentences, उसको भी आप कर लीजिए। ठीक है, can we wind up? yes, ma'am. Thank you. चलिए, जय जिनेंद्र, थैंक यू। जय सब जिनेंद्र, सब साथा में साथा में रहना, सब साथा में रहना। जय जिनेंद्र मैम, थैंक यू सो मच।